وہ جلد گھر واپسی کر رہے ہیں۔ شہربین نے جب چودھری تاج محی الدین سے پوچھا کہ کانگریس چھوڑ کر آزاد صاحب کی پارٹی میں شامل ہونے کے فیصلے کو آج آپ کس طرح دیکھتے ہیں، تو ان کا جواب تھا کہ وہ ایک وقتی اور جذباتی فیصلہ تھا جو صحیح نہیں تھا۔ البتہ آزاد صاحب کے ساتھ ذاتی رشتوں میں آج بھی کوئی درار نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ تقریباً ساری وہ باڈی ہوتی گئی ہوئی وہ واپس آ رہی ہے۔ اس میں سروری صاحب بھی ہیں، یہ امین بٹ بھی ہے، گلزار بھی ہے، چگل کشور بھی ہے، یہ سارے تقریباً جو تھے منتری اور وہ جو گئے ہوئے تھے واپس آ رہے۔ بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں تک پہنچا؟ میرے خیال میں اب کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، کسی وقت بھی ہو سکتا۔ تو ہم اسی مہینے میں اس کو ایکسپیکٹ کریں یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم لگے؟ اسی مہینے بھی ہو سکتا ہے، اسی مہینے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے پارلیمنٹ اور میٹنگ کی وجہ سے تھوڑی ڈیلے ہوئی تھی۔ اب آئی تھنک دی ہیو ڈیسائیڈڈ ان پرنسپل، اب صرف یہ ہے کہ کہاں دلی میں ہوگا، جموں میں ہوگا، دیٹ از ٹو سی۔ ان پرنسپل دی ہیو ڈیسائیڈڈ۔ جاننا چاہیں گے کہ جتنے بھی کانگریس چھوڑ کے گئے تھے کیا سب واپس آ رہے ہیں یا سب کو لیا جا رہا ہے؟ تقریباً سب۔ کانگریس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں جموں کشمیر میں موجودہ حالت میں؟ دیکھیے کافی برائٹ ہے کشمیر میں، اس وقت بھی 5 سیٹیں بھی، اگر ہم لوگ بھی کانگریس میں ہوتے تو شاید ساری سیٹیں لے لیتے۔ یہ بی جے پی کا داغ جو ہم نے انڈیپینڈنٹ پہ لگایا وہ نہ لگتا۔ کانگریس چھوڑنے کا جو فیصلہ تھا مجموعی طور پہ، یا ہم آپ کا پوچھتے تھے، کیا آپ کو آج لگ رہا ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا یا وہ وقت کی ضرورت تھی؟ نہیں، وقت کی ضرورت نہیں تھی، اٹ واز اے جسٹ ایموشنل ہیکپ، ایک دم ہی ہوا، سمجھ میں نہیں آیا کیسے ہوا۔ آزاد صاحب سے جو ذاتی روابط تھے، ذاتی تعلق ہیں، وہ ابھی بھی ہیں، ان سے ذاتی طور پہ کوئی یہ نہیں۔ آج آزاد صاحب نے اپنی ساری باڈیز ختم کر دیا، اس پہ آپ کچھ کہیں گے؟ وہ ان کی پارٹی ہے، جو مرضی کریں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس سے۔ یہاں پہ چونکہ پنچایتی الیکشن آنے والے ہیں جموں کشمیر میں، جی ہاں، اس سے پہلے ہی انڈکشن ہو جائے گی۔ کتنا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں اس میں؟ نہیں، اچھا خاصا امپیکٹ ہوگا۔ دیکھیے آپ کا کانگریس کا کوئی ہے نہیں اب چناب ویلی میں، سروری بھی آ گیا ہے، وہ وانی صاحب بھی آ گئے، تو اس سے کافی فرق پڑے گا۔ بیشتر لیڈران جلد کانگریس میں واپس آ رہے ہیں، سابق وزیر چودھری تاج محی الدین کا اظہار خیال۔ اب ایک اور موضوع، سامعین، کپواڑہ سے اطلاع موصول ہوئی کہ آلوسا کرالپورہ میں آج صبح ایک تیندوے نے ایک بزرگ محمد عبداللہ وانی اور ایک خاتون حفیظہ بیگم پر اس وقت حملہ کیا جب وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ مقامی لوگوں نے فوری طور زخمیوں کو سب ضلع اسپتال علاج معالجے کے لیے داخل کرایا۔ اس دوران محکمہ جنگلی حیات کی ایک ٹیم آلوسا پہنچ گئی ہے اور تیندوے کو پکڑنے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ حضرت سید احمد قاسم اندرابی اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس 16 اپریل مطابق 17 شوال المکرم بدوار ان کے آستان عالیہ پچھل پلوامہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ نماز عصر کے ساتھ ہی تلاوت قرآن پاک، خدمات و معظمات اور درود و اذکار کی مجالس کا اہتمام رہے گا۔ شہربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، چیئرمین جموں کشمیر سول سوسائٹی فورم اور پریزیڈنٹ پینشنرز یونائٹڈ فرنٹ عبدالقیوم وانی نے آج آل انڈیا اسٹیٹ پینشنرز فیڈریشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شمولیت کی اور ملکی سطح پر پینشنرز کو درپیش مسائل اور دیگر معاملات کو اجاگر کرانے کے لیے ایک لائحہ عمل ترتیب دینے پر زور دیا۔ واضح ہے کہ اجلاس نئی دلی کے اشوک بھون میں آج منعقد ہوا، جس میں ملک بھر کے مندوبین نے شرکت کی۔ جے کے پہاڑی ایتھنک گروپ تحصیل بونیار نے آج بین الاقوامی پہاڑی دن منایا۔ اس موقع پر مطالبہ کیا گیا کہ اوڈی سب ڈویژن میں قائم پذیر سبھی کنبوں کو ایس ٹی درجہ دیا جائے۔ آج کے اجلاس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اور مشترکہ طور جموں کشمیر سرکار سے مانگ کی گئی کہ ایس ٹی کا درجہ اوڈی سب ضلع کے سبھی باشندوں کو دیا جائے، کیونکہ آبادی کے ایک چھوٹے حلقے کو ریزرویشن سے باہر رکھنا کسی بھی صورت میں ان کے حق میں نہیں ہے۔ اب ایک اور موضوع، سامعین، وادی کشمیر کے طول و عرض سے شہربین کو آئے روز شکایات مل رہی ہیں کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنے کے 1 سال بعد بھی انہیں لائسنس نہیں ملی ہے۔ اسی طرح ہزاروں ایسے ڈرائیور جنہوں نے ری ویلیڈیشن کے لیے 1 سال قبل لوازمات پورا کیے ہیں، لائسنس کو منظوری بھی ملی ہے مگر لائسنس نہیں ملا ہے، جبکہ ڈرائیونگ لائسنس ایک اہم دستاویز کے طور کئی جگہ پر پیش کرنا پڑتی ہے۔ خاص طور سے حادثات کی صورت میں اسے پولیس اسٹیشن یا پھر عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لائسنس پرنٹ کرنے کا ٹھیکہ کسی باہر کی کمپنی کو دیا گیا تھا اور کمپنی اپنا کام کاج صحیح طریقے پر
करने में नाकाम रही, जिस वजह से 1 लाख के करीब अफराद को वक्त पर लाइसेंस नहीं मिल सकी हैं। शेरबीन ने आज आरटीओ कश्मीर काजी इरफान से इस मामले पर बात की और साथ ही स्मार्ट सिटी की गाड़ियों की बढ़ती डिमांड के बारे में भी उनसे इस्तफसार किया। काजी इरफान ने तस्लीम किया कि कॉन्ट्रैक्टर की गफलतशारी के बायस 80,000 के करीब लाइसेंस वक्त पर सार्फिन को नहीं मिल पाए हैं। अलबत्ता ठेकेदार को तब्दील करके इस अमल में सूरत लाई गई है और 1 महीने के अंदर सभी को लाइसेंस फराहम करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि बहुत से जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई भी किया है उनको अप्रूवल भी मिला है, लेकिन उनको हार्ड कॉपीज जो लाइसेंस की पीवीसी हार्ड कॉपीज हैं वो अभी तक नहीं मिली है। एक्चुअली लास्ट ईयर जिस एजेंसी को हमने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कुछ वजूहात की वजह से दे वर नॉट एबल टू कम अप टू द मार्क, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट हमें टर्मिनेट करना पड़ा। लेकिन पॉजिटिव न्यूज ये है कि अब 5 साल के लिए हमने एक एजेंसी को हायर किया है और उन्होंने जो हमारा बैकलॉग था अराउंड 70 to 80,000 जो लाइसेंसेस का बैकलॉग था 1-2 साल से, जिसका आपने भी जिक्र किया, वो क्लियर प्रिंटिंग हो गई है, कंप्लीट हो गई है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ अभी डिस्पैच चल रहा है एट द रेट ऑफ अराउंड 3,000 to 4,000 लाइसेंसेस हम डिस्पैच कर रहे हैं थ्रू इंडिया पोस्ट, उसके थ्रू हम कर रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा टाइम लगेगा, प्रिंटिंग कंप्लीट हो गई है। होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और जो नेक्स्ट मंथ है उसके मिड तक मुझे लगता है कि हर किसी एप्लीकेंट को जिसने लास्ट एग्जाम ये जो टेस्ट है क्वालिफाई किया और लाइसेंस अप्रूव हुई है, मीनवाइल तब तक मैं लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि वो डिजी लॉकर में भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी लाइसेंस को। एंड दिस इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रैफिक डिपार्टमेंट। जब भी आप कहीं पे भी लाइसेंस की डिमांड हो तो अपने मोबाइल से आप उनको डिजी लॉकर में जो आपकी लाइसेंस है वो दिखा सकते हैं। इट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट और ये रिकॉग्नाइज है। इवन कुछ स्टेट्स में अब उन्होंने 100% शिफ्ट ही किया है ई लाइसेंस की तरफ। लेकिन अब इतना कहने के बावजूद भी ये मैं चाहूंगा कि आपको पीवीसी जो लाइसेंस है, लाइसेंस जिनकी अप्रूव हुई है उनको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और मैक्स 15 मई तक उनको इंशाल्लाह लाइसेंस मिल जाएगी। जिनकी रिन्यूज है उनका भी पेंडिंग है, बहुत सारा उनका भी है जिनकी रिन्यू है। रिन्यूअल वाले केसेस में भी यही सूरत हाल है। मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ जिनकी फ्रेश लाइसेंस है या रिन्यूअल लाइसेंस है, मैं या किसी की मॉडिफिकेशन वाली भी जो लाइसेंस है, क्योंकि अब जब आप लाइसेंस को मॉडिफाई कराते हो तब भी आपको जो आप एडिटेड फॉर्म या रिवाइज फॉर्म में जो आपकी लाइसेंस है वो आपको पीवीसी कार्ड में ही मिलनी चाहिए। वो इंशाल्लाह मिल जाएगी, सारा क्लियर हो जाएगा सब लोगों को जिनका अप्रूव हुआ है या जिनने रिन्यू करवाई है, जिनने कोई रिप्लेसमेंट या मॉडिफिकेशन करवाई है, इंशाल्लाह उनको मिल जाएगा। इसमें एक दिक्कत है कि अब तो डिजिटलाइजेशन तो हो गई है, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे सबसे पहले पुलिस स्टेशन में लाइसेंस को सरेंडर करना पड़ता है या कोर्ट में करना पड़ता है, और वहाँ ये जो डिजी लॉकर है वो वहाँ पे वो लाइसेंस काम नहीं करती है। इस वजह से लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसा कोई केस मेरी अभी इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन आपने कहा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ इस जिम्मन में हमने एसएसपी ट्रैफिक से भी मैंने बात की थी, तो उन्होंने एश्योर किया था कि ऑल देयर स्टाफ, ऑल देयर पर्सनल हैव बीन सेंसिटाइज्ड। उनको इन्फॉर्म किया गया है कि दैट ई जो लाइसेंस है जो डिजी लॉकर में हो या किसी ने स्क्रीनशॉट भी उतारा हो या उनके पास खुद के इक्विपमेंट्स में भी है जिसमें वो नंबर फीड करके चेक कर सकते हैं कि बंदे की लाइसेंस जो है वो वैलिड है कि नहीं, वो ये रिकॉग्नाइज की जाती है। इन एक्सट्रीम केसेस में हम खुद प्रिंट आउट निकाल के ऑन डिमांड, ऑन स्पेसिफिक डिमांड, स्पेशल डिमांड उनके लिए उनको वो प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आपकी चैनल के थ्रू मैं उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी आने के बाद से बहुत शहर में आसानी हो गई लोगों को, और इस वजह से इस बस सर्विस की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। अभी कितनी गाड़ियां हैं आपके पास और फ्यूचर प्लान क्या है स्मार्ट सिटी का? 100 तो हमारे पास अवेलेबल है स्मार्ट सिटी के। ये इसमें मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, एक्चुअली स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, बट हमारा रूट्स में हमारा इम्पोर्टेंट रोल है, वी वेर पार्ट ऑफ दैट, बट एसेट्स ये स्मार्ट सिटी के हैं, यानी एसएमसी के अंदर यहाँ आते हैं। डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अभी उनके पास 2 गाड़ियाँ हैं, ऑन एंड ऑफ 2-3 गाड़ियाँ हमेशा या तो इशू कोई होता है, रिपेयर्स होते हैं, उनमें कहीं पे मेंटेनेंस का कोई इशू हो जाता है, तो अराउंड 90+ जो गाड़ियां हैं वो ऑलवेज इन ऑपरेशन रहती हैं। लास्ट कुछ टाइम पहले ही हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया था कि दे आर गेटिंग 100 मोर व्हीकल्स। अगर वो एडअप हो जाएंगे हमारे रेड फ्लीट में, बहुत ज्यादा एरिया जो हंगरी रूट्स हैं वो इंशाल्लाह इसमें कवर है। 80,000 के करीब लाइसेंस एक माह के अंदर सार्फिन को बज़र डाक रवाना की जाएंगी। बात कर रहे थे आरटीओ कश्मीर काजी इरफान। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, कंट्रोल लाइन पर टीटवाल से चंद किलोमीटर आगे सिमारी नाम का एक गांव है जहां के बाशिंदों को आज तक बिजली नसीब नहीं हो सकी है। ये गांव बंदिशों के जुमरे में आता है और इस वजह से यहाँ तामीर और तरक्की के काम दूसरे इलाकों के मुकाबले में कम देखे जाते हैं। आज फौज और आसिम फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से गाँव तक बिजली पहुंचा दी गई है, जबकि अब यहाँ रसोई गैस भी पहुंचाई जा रही है। इशफाक सईद की रिपोर्ट। जामिया तरक्की और कौमी खिदमात की एक ताकतवर मिसाल के तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा करनाक के सिमारी गांव को भारतीय फौज और आसम फाउंडेशन के मुश्तरका इक़दाम के जरिए मुकम्मल तौर पर बिजली और LPG के काबिल बनाया गया है। यहाँ के लोग अब तक महदूद बिजली और खाना पकाने की इब्तदाई सहूलियात के साथ जद्दोजहद कर रहे थे। इस मंसूबे ने सिमारी गाँव के 50 से ज्यादा घरानों को सोलर, माइक्रोग्रिड्स और क्लीन कुकिंग LPG किट से तब्दील कर दिया है, जिससे गांव वालों के मयार जिंदगी में नुमाया बेहतरी आई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस इलाके में भारतीय फौज की जानब से आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फौज के ब्रिगेडियर SK प्रधान, SDM करना जफर अहमद लोन, तहसीलदार करना मोहम्मद अमीन भट्ट के अलावा आसम फाउंडेशन के ओहदेदारान और दीगर आला अफसरान ने भी शिरकत की। मालूम रहे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा ये गांव, जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में आता है, इसकी स्ट्रेटेजिक और जमहूरी हैसियत बहुत अहम है, क्योंकि ये भारत का पोलिंग नंबर 1 है। बरसों से इस गांव के बासी बिजली की सहूलियात से महरूम और पुराने तरीके से यानी खतरनाक तरीकों से खाना पकाने पर मजबूर थे। मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए शहरबीन को बताया कि उन्होंने पहली बार बिजली की शक्ल देखी है। उन्होंने फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब उनकी खवातीन को चूल्हे पर खाना बनाने और लालटेन के जरिए रोशनी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिमारी टीटवाल से इशफाक सईद की रिपोर्ट सुनी। सामीन, वादी कश्मीर के मारूफ शायर और अदीब प्रोफेसर मरहूम गुलाम मोहम्मद शाद के नाम पर बिजबिहाड़ा अनंतनाग में शाद मेमोरियल फाउंडेशन का एहतमाम किया गया। तंजीम में प्रोफेसर शाद के मद्दाहों और अदब नवाजों को शामिल किया गया है। फाउंडेशन ने फौरी तौर पर प्रोफेसर शाद के मतबूआ और गैर मतबूआ कलाम पर मुश्तमिल कुलियात शाद को तरतीब देने और शाया करने का फैसला लिया है। मुश्ताक देव ने खबर दी है कि जिला अनंतनाग के सिंथनटाप इलाके में सड़क के हादसे में कम अज कम 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ मकामी इंतजामिया ने PHC लारनू मुंतकिल कराया। अब एक और मौजू। सामीन, आज भारतीय आईन के मेहमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योम पैदाश के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात मुनक्कद हुई। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीश धनखड़, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 134वें योम पैदाश पर खराज अकीदत पेश किया है। जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ जमातों ने आज तकरीबात मुनक्कद करके आन जहानी को याद किया। प्रदेश कांग्रेस ने आन जहानी की मुल्क की 3 खिदमात को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इधर बीजेपी की तरफ से भी आज जिला सतह पर तकरीबात का एहतमाम रहा, जिस दौरान लीडरान ने बाबा साहब को याद करते हुए उनके मुल्क और कौम के 3 खिदमात को सराहा और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सबसे बड़ी तकरीब हेड ऑफिस जवाहर नगर श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्श चंद्राबी और तर्जुमान आला सुनील शेट्टी मेहमान खुसूसी के तौर शामिल रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हिदायत पर आज पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान ने कलारूस और सोगाम जाकर उन तालिबात के वर्षा से ताज़ियत की जो गुज़श्ता दिनों हादसे में अज़जा हुई थी। चौधरी मोहम्मद रमजान ने वर्षा की डारस बांधी और मरहूमीन के हक में दुआए मगफिरत की। अब एक और मौजू।
समेत जनूबी कश्मीर के चारों अजला में गैर कानूनी और गैर साइंसी कानकनी के नतीजे में दरियाई झेलम समेत दीगर नदी नालों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जबकि पानी के कुदरती बहाव और सतह आब में कमी आने से पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई की कई स्कीमों की सलाहियत मुतासिर हुई है। कानकनी का यह मामला इस बार असम्बली इजलास में भी जोरों शोर से उठा और इसके बाद ही मुतल्लिका महकमों के अफसरान और एहलकारों की नींद टूटी और रेतबाजी माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज करती गई। पुलवामा से शौकत डार की रिपोर्ट। पुलवामा जिले में मुख्तलिफ नदी नालों और दरिया में हो रही गैर कानूनी कानकनी पर पूरी तरह से कदगन लगाने की गर्ज से गुज़श्ता 2 हफ्तों से महकमा मुतहरिक हो गया है और इस ज़िम्न में कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियां जब्त होने के अलावा लाखों रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है, जबकि कई केस भी दर्ज हुए हैं। फराहम शुदा तफसीलात के मुताबिक महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग ने नाले रंबियारा, रोमशी नाला और जहलम में गैर कानूनी तौर से कानकनी को रोकने के लिए गुज़श्ता 12 रोज के अंदर छापेमार कार्रवाइयों में तेजी लाई है। इन कार्रवाइयों में कम से कम 20 गाड़ियों को जब्त किया गया है, जिनमें बड़ी LNT मशीनें, JCB, डंपर और टिपर शामिल हैं। इसके अलावा महकमा ने इस गैर कानूनी काम में मुलविस अफराद से कम 5 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है। अलावा अजीब 15 FIR भी दर्ज किए गए हैं। इधर महकमा की मुख्तलिफ टीमों ने करीबन 30 मुकामात पर नालों के किनारों और दरिया के पश्ते व बंद काट कर रसाई के लिए बनाए गए रास्तों को भी बंद कर दिया है, ताकि गाड़ियों को नालों में न उतारा जा सके। इस ज़िम्न में महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग के जिलाई अफसर मंजूर अहमद ने बताया कि नाले रंबियारा और नाले रोमशी के अलावा लतपुरा और अवंतीपुरा इलाकों में हो रही कानकनी को लगभग पूरी तरह से रोक दिया गया है। उनका कहना था कि गुज़श्ता 1 महीने के दौरान 6 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया है, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियां भी जब्त हुई हैं। वाज़ेह रहे कि हाल ही में MLA राजपुरा और MLA पुलवामा ने असेंबली में इन नालों में हो रही तबाहकुन कानकनी को रोकने की मांग की थी, जिस पर नायब वजीर आला ने इस मामले पर कार्रवाई करने की हामी भरी थी। अब जबकि कल यानी 15 अप्रैल को वजीर आला उमर अब्दुल्ला नायब वजीर आला के हमरा रहमू पुलवामा में रोमशी नाले पर 11 बरसों में मुकम्मल हुए पुल की इफ्तिताह करने आ रहे हैं, कभी इम्कान है कि वो इन नालों में हो रही बेहमगम कानकनी के मामले पर भी नजरसानी करेंगे। दफ्तरी ज़राए के मुताबिक वजीर आला की आमद के पेश नजर ही इन कार्रवाइयों में तेजी लाई गई है। ताहम इन नालों के नजदीक आबाद हजारों बाशिंदों की उम्मीद है कि वजीर आला पुलवामा में कानकनी से हुई तबाही का जायजा लेकर इस पर पूरी तरह से पाबंदी आयद करेंगे, ताकि इस तबाही को बढ़ने से रोका जा सके। मायूस कुन है कि कई वर्षों से इस गैर कानूनी काम में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिससे इलाके में पूरा आबपाशी निजाम दरहम बरहम है। साथ ही मुतअद्दिद चश्मे सूख गए हैं और माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस सबसे ज़रई व बागबानी शोबा बुरी तरह से मुतासिर है और इन मुतासरा इलाकों की सड़कों पर धूल, पत्थर, बजरी और रेत बिखरी पड़ी रहती है। ये थे पुलवामा से शौकत डार। सऊदी सरकार की तरफ से भारत के लिए मुकर्रर किए गए हज कोटे में 52,000 की कमी करने के फैसले पर अवामी और सियासी सतह पर बड़े पैमाने पर नुक्ताचीनी की जा रही है। NC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी सऊदी हुकूमत के इस यकतरफा फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए सऊदी सरकार से अपील की है कि फैसले को फौरी तौर वापस लिया जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आज़म से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है और साथ ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से कहा है कि मामले को हुकूमती सतह पर वज़ारत दाखिला के साथ उठाया जाए और उनकी मुदाखलत तलब की जाए। PDP लीडर अल्ताफ मलिक ने आज रफियाबाद के कई देहात का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुतालबा किया कि रफियाबाद और जैनगीर की आपाशी कौल, नमफी, नाला हमल, वजी नाला, डाकली नाला, दौलत कौल और लाल कौल की तजदीद व मरम्मत की जाए, ताकि किसानों को आपाशी के हवाले से मुश्किलात का सामना न रहे। अल्ताफ मलिक ने कहा है कि हाई लिफ्ट स्कीम, अचबल फर्स्ट और सेकंड समेत दीगर लिफ्ट स्कीमें भी काबिल कार बनाने की जरूरत है। यूथ वेलफेयर एसोसिएशन डिवर लोलाब 19 अप्रैल को मनशियात मुखालिफ एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद कर रहा है, जो गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल देवर लोलाब में मुनक्कद होगा। इस प्रोग्राम में SDM लोलाब मेहमान खुसूसी और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुगाम लोलाब सदर महफिल के तौर मौजूद रहेंगे। स्कूली बच्चे भी प्रोग्राम में शमूलियत कर रहे हैं, जिनमें से बाज़ एक को तौसीफ़ी असनाद से नवाजा जाएगा।
समीना श्रीनगर में अदबी मरकज कमराज ने कश्मीरी ज़बान को दरपेश मसाइल के मौजू पर एक इजलास मुनक्कद किया। इजलास में वादे के मुतअद्दिद अदीबों, कलमकारों, सोसाइटी मेंबरान और साफ़ियों ने शिरकत की। इजलास की सदारत उर्दू और कश्मीरी ज़बान के मारूफ कलमकार प्रोफेसर मोहम्मद जमा आज़ुर्दा ने की। उनके हमरा प्रोफेसर नजीम शफाई और सदर मरकज़ मोहम्मद अमीन बट भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरां समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट, अपने तामीरात दिल से बनाओ।